welcome back to the another video on Commerce Arena. Today we are here with the chapter 1 of economics, of microeconomics, that is economics and economy. Okay, let's start. Economics. First of all, we study about economics, that what do we mean by economics. Economics is the subject matter that deals with the economic problems related to human life. Human life से related जो भी problems होती हैं उनके बारे में हम economics में पढ़ते हैं. It is a subject matter. See, economics is the subject matter that deals with the economic problems related to human life. Related to human life means economics में हम उन economic problems के बारे में deal करते हैं जो human life से related होती हैं, right? Next we have economic problems. Economic problems क्या होती हैं? हमारी economy में बहुत सारी problems होती हैं, right? They are, अब reasons economic problems किन दो वजह से होती हैं? There are two reasons of economic problem. Means economic problem दो reasons की वजह से होते हैं. First is resources are scarce. Second one is resources have alternative uses. First one is resources are scarce. Means resources जो हैं उनकी बहुत कमी है. हमारी कंट्री में resources की बहुत कमी है. जिस हिसाब से हमारी कंट्री की population है उस हिसाब से जो resources हैं वो scarce हैं, right? Next, resources have alternative uses. Resources के alternative uses हैं, right? Alternative uses हैं and resources are scarce. For example, we can say water. Water scarce भी है and water के alternative uses भी हैं. Means बहुत सारे uses होते हैं water के, like washing clothes, drinking, cleaning, etc. Right? वो तो हमने बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ रखा है कि वाटर के क्या क्या यूजेस होते हैं, राइट? एंड वाटर इज स्कार्स ऑल्सो. सो देयर आर मेनी रिसोर्सेज which are scarce and which have alternative uses. So these two are the reasons for economic problems. Next we have microeconomics. Microeconomics जो कि आपके बुक का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है. ओके, सो microeconomics is the branch of economics. वो एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की. जो इकोनॉमिक्स है वो दो टाइप की होती हैं. फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो फर्स्ट वन वी आर स्टडिंग नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक इशूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में डील करती है जो कि एक इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं. दिस इज द मेन टर्मिनोलॉजी, राइट? इंडिविजुअल. माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक इंडिविजुअल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक इश्यूज में डील करती है एंड वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और वो इकोनॉमिक इश्यूज जो एक इंडिविजुअल के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, an individual consumer, individual producer, individual market, right? Next is macroeconomics. Macroeconomics is the branch of economics that deals with economic issues and economic problems related to economy as a whole. ये भी एक ब्रांच है. मीन्स इकोनॉमिक्स की टू ब्रांचेस हैं. फर्स्ट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? सो ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो डील करती है उन इकोनॉमिक इश्यूज़ में और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जो रिलेटेड किससे होते हैं, इकोनॉमी एज अ होल. मीन्स पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं. उन प्रॉब्लम्स में ये डील करती है. व्हाट? मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? Next we have microeconomics and macroeconomics. It is the difference. You can write it down if there is if in the exam you are asked about the difference. Now we have positive economics versus normative economics. There are two types of economics, that are positive economics and normative economics. So positive economics
1 minute. Positive economics deals with economic issues related to past, present and future. पॉजिटिव इकोनॉमिक उन इकोनॉमिक इश्यूज से डील करता है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं. और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है विद द ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट. ओपिनियंस से डील करता है. जो स्टेटमेंट्स होती हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की वो होती हैं व्हाट वाज, व्हाट इज़ और व्हाट वुड बी. इनका आंसर जो निकलता है दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. एंड वॉट आउट टू बी मीन्स क्या हो सकता है, मीन्स ओपिनियंस, हमारी ओपिनियंस. ओके, सो दे आर स्टेटमेंट्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वॉट आउट टू बी. सो थर्ड वन इज स्टेटमेंट्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रूथ. दे मे बी ट्रू और फॉल्स. मे बी ट्रू और फॉल्स की जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं. राइट, वी कैन जज देम, वी कैन से देम द ट्रूथ or the false, right? But normative statements cannot be termed as true or false. They are opinions only. ये केवल opinions होती हैं, इनको हम true या false नहीं कह सकते. ठीक, like example of positive economics is somebody says population of India is more than the population of China. It is definitely a positive statement. ये एक positive statement है, but ये wrong है ना. हम verify कर सकते हैं कि ये wrong है या right है. बट somebody says that old age pension should be stopped. It is just an opinion. ये केवल एक ओपिनियन है. फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होते हैं वो वेरीफिएबल होते हैं ट्रुथ के लिए, बट नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो नॉट वेरीफिएबल होती हैं. और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. मीन्स हम वैल्यू जज कर सकते हैं किसी की, वो सॉरी हम वैल्यू जज नहीं कर सकते पॉजिटिव स्टेटमेंट में. बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम वैल्यू जजमेंट कर सकते हैं. अब जिसके ओपिनियंस जैसे होंगे हम उस हिसाब से उसकी वैल्यू को जज कर सकते हैं. राइट, नेक्स्ट इज इकोनॉमी. द टॉपिक वी हैव नाउ इज इकोनॉमी. इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग. इकोनॉमी एक सिस्टम है जिसमें जो एक एरिया के लोग होते हैं वो अपनी लिविंग अर्न कर सकते हैं. लिविंग मीन्स अपना जीवनी, मीन्स जिससे वो जो जीने के लिए पैसा चाहिए होता है दैट इनकम वो अर्न करते हैं. राइट, तो इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसमें लोग, एक एरिया के लोग अर्न देयर लिविंग, अपनी जीवनी को अर्न करते हैं. अंडरस्टूड? Then we have types of economics. There are 3 types of economics. First one is centrally planned or we can say controlled economy. Second, free economy or market economy. And next, mixed economy. Okay, so centrally planned या controlled economy. Centrally planned economy is the one in which economic activities are controlled by some central authority or the government. सेंट्रली प्लान या कंट्रोल्ड इकोनॉमी में जो कंट्रोल होता है वो या तो सेंट्रल अथॉरिटी का होता है या फिर गवर्नमेंट का होता है. ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी का होगा या फिर गवर्नमेंट का होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्री इकोनॉमी और वी कैन से मार्केट इकोनॉमी. इट इज़ द अनदर नेम ऑफ फ्री इकोनॉमी. व्हाट? मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी. वो इकोनॉमी है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल्ड होती हैं. मार्केट फोर्सेस, सप्लाई और डिमांड, जो कि हमारे मार्केट फोर्सेस हैं वो लोग प्राइस कंट्रोल करते हैं. ठीक है, वो कंट्रोल करते हैं मार्केट इकोनॉमी की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न्ड बाय द मार्केट फोर्सेस. मार्केट फोर्सेस गवर्न करते हैं एंड रेगुलेट कौन करती है? गवर्नमेंट. मीन्स सेंट्रली प्लान्ड में गवर्नमेंट करती है, फ्री और मार्केट इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई करती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों करते हैं. इट इज़ मिक्स्ड मीन्स द मिक्सचर ऑफ सेंट्रली प्लान्ड और फ्री इकोनॉमी. ओके, This is all about the chapter 1 of microeconomics class 11th, that is economics and economy. If you like my efforts, then don't forget to hit the like button and subscribe my channel for getting more updates about the other videos.